Hello class, how are you? Myself Amit Tripathi from Shubhra Singh Children Academy. Class, today we are going to discuss your current running chapter Force and Law of Motions, exercise question solutions from question number 11 to question number 18. Guys, in previous class video we will discuss your exercise question solutions from question number 1 to question number 10, and then continue to this series. We will today discuss the solution of question number 11 to question number 18. Okay, we start. The today's first question is question number 11. The question is, two objects each of mass 1.5 kg are moving in same straight line. This is the important point. Okay, but in opposite directions. Okay, the velocity of each object is 2.5 meter second की power -1 before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of combined object after collision? Okay, this is the pictorial form of this questions. Means you have two bodies, each body having mass 1.5 kg and moving with same velocity 2.5 meter second की power -1, 2.5 second की power -1, but the direction of motion is opposite to each other. That means first body will move in this direction, this arrow shows, but this body will move in opposite to the first body motion. Okay, तो ये दोनों बॉडीज आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, तो एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो दोनों आके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी एक डिस्टेंस पे क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी. ओके, इस कोलिजन में आपका जो वेलोसिटी होगा, कंबाइंड वेलोसिटी जो आपकी होगी, इस तो पूरे ऑब्जेक्ट की कंबाइंड वेलोसिटी जो होगी उसको आपको फाइंड आउट करना. ओके गाइस, इट इज क्लियर. Then we start the solution. First, given that mass of each object means mass of first body, that is m1. This is also equal to the mass of second body because each having the mass is 1.5 kg. Okay, clear. The velocity of each object is equal but opposite in direction. Velocity भी same है but उनकी direction opposite है. तो velocity of first body, this is 2.5 meter second की power -1 and u2 is minus times of 2.5. Here we consider the minus sign because the motion is the opposite direction of the first body. Okay, clear. Then आपको find out करना है velocity of combined body after collision. Suppose this is v. We suppose the velocity of combined object after collision is v. Okay guys, you all are know the law of conservation of momentum. Total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. Okay, we will apply this formula. Then we find mass of means before collision, mass of first body, velocity of first body before collision, plus mass of second body and velocity of second body before collision. Then total mass of combined body after collision into total velocity of combined body. Okay, तो टोटल वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी, दोनों बॉडी जब आपकी कोलाइड करेंगी तो एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएंगी, तो उनका टोटल मास जो होगा उनका एडिशन होगा. ओके, वी पुट द वैल्यू ऑफ m1 is 1.5, u1 is 2.5 and m2 is 1.5, u2 is minus times of 2.5. Guys, this minus sign represents the direction of velocity is opposite to the first body. Okay, then m1 plus m2 1.5 plus 1.5 into v. Okay, we solve it. We find 1.5 multiplied by 2.5, it will give value 3.75, minus this will be minus times of 3.75. This is equal to 1.5 plus 1.5 is 3.0 into v. Okay, this value left hand side value gives the 0 value. Okay, because 3.75 minus 3.75 you will find the 0. This is equal to 3.0 into v. This means v is equal to 0.
It means your combined velocity of the moving object is 0. That means after collision both object are going to rest. ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो आपके दोनों ऑब्जेक्ट होंगे वो मूवमेंट नहीं करेंगे, मींस वो मोशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वेलोसिटी क्या फाइंड आउट, आपको न्यूमेरिकली क्या फाइंड आउट हुई? 0। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक रेस्ट पोजीशन पे होगा। गाइस इट इज क्लियर, दिस इज योर आंसर। कंबाइंड वेलोसिटी इज 0 मीटर सेकेंड की पावर -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। According to third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. Okay guys, ये थर्ड लॉ आपका न्यूटन्स का है कि आप किसी बॉडी को पुश करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, तो वो आपको बैक डायरेक्शन में सेम इक्वल अमाउंट के फोर्स से भी आपको पुश करती है। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड। सपोज ये करते हैं कि जो आपका जिसको आप पुश कर रहे हैं वो आपका एक ट्रक है जो एक रोड के किनारे क्या है, खड़ा हुआ है। ठीक है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। आपने इसको पुश किया लेकिन ये मूव नहीं किया। ठीक है, ए स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। ओके, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसा किसी स्टूडेंट ने जस्टिफाई किया जब वो ट्रक मूव नहीं किया, उसने उसको पुश किया। ठीक है, कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। आपको इस लॉजिक पे कमेंट करना है, आप अपना व्यू आपको देना, क्या ये सही जो स्टूडेंट ने जस्टिफाई किया, ये आंसर सही था या नहीं सही था, और ट्रक क्यों नहीं मूव की। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना। ओके गाइस, ये आपका ट्रक है और आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ट्रक रोड का और ट्रक के जो व्हील्स हैं, टायर्स हैं, उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा। ठीक है, और जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स इन कंपैरिजन टू द मास, in comparison to the friction force which is acting between the road and tire of the wheel of the truck is very larger than the applied force. Okay, that's why your truck will not move. Okay, this is the justification of your answer and logic and explanation of why your truck will not move when you push the truck at the time when it is parked at the side of the road. Okay guys, two equal and opposite forces cancel each other. It's wrong because action and reaction force will always act on two different bodies. ओके, नॉट एट ए सेम बॉडी। किसी एक बॉडी पे आपका एक्शन और रिएक्शन फोर्स वर्क नहीं करता है, वो आपके टू बॉडी पे करेगा। बट आपका जो स्टूडेंट था उसने क्या आंसर दिया है, टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। ठीक है, ये आपका रॉन्ग होगा एक्सप्लेनेशन। और मैसिव ट्रक मूव नहीं की, डज नॉट मूव बिकॉज व्हेन यू पुश मींस यू अप्लाइड ए फोर्स. This is the action force and it is much smaller than the force of friction between the wheel of truck and road. जो आपने फोर्स अप्लाई किया, पुश किया, वो आपका बहुत ही स्मॉलर था इन कंपेरिजन टू द फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा था. ठीक है, सिंस द फोर्स ऑफ पुश इज नॉट एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, therefore the truck does not move. Okay, this is the your explanation of the justify to the students explanations. Okay, the next question is question number 13. Okay, a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path a velocity of 5 meter per second. Okay, आपके पास एक हॉकी बॉल है जिसका मास क्या है 200 ग्राम्स
और इसकी जो स्पीड है उस बॉल की वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, ये क्लियर है। और ये जब मूव करता है तो इसको एक हॉकी स्टिक से हम क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं, मतलब इसको आप हिट करते हैं, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ की डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से रिटर्न होता है। ओके, तो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। मींस आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है जब आपने बॉल को हॉकी स्टिक से स्ट्रक किया। ओके, लेट्स वी स्टार्ट द सॉल्यूशंस। Given that mass of hockey ball m is equal to 200 gram, you will convert this 200 gram in kilogram. This will be 0.2 kilogram. Okay. Next is initial velocity of hockey ball u is equal to 10 meter per second. 10 meter per second की स्पीड से ये मूव कर रहा था, ठीक है। Then final velocity of hockey ball, जब आपने उसको 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव किया, जब आपने हॉकी स्टिक से आपने हिट किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूज किया माइनस साइन, क्यों? क्योंकि यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। अपनी ओरिजिनल पाथ के डायरेक्शन में ये क्या किया, रिटर्न हो गया। मींस इसकी डायरेक्शन अलोंग टू द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या है, अपोजिट है। इस वजह से हमने यहाँ क्या यूज किया है, माइनस साइन। ओके, देन change in momentum, this is equal to final momentum minus initial momentum. Final momentum means change in momentum, that is equal to final momentum means mass of ball into final velocity minus initial momentum, mass of ball into initial velocity. You put the value, m is 0.2 kilogram, v is minus 5, m is 0.2 and u is 10. You will multiply this, you will find this multiplied, this is find minus 1.0 and you will multiply this, you will find minus 2.0. This will be equal to minus times of 3.0 kilogram per second. Okay, this minus sign represents the direction of momentum is along the opposite to the direction of its original path. मीन्स जिस डायरेक्शन में आपकी बॉल सपोज इस तरफ में मूव कर रही थी, तो आपका जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मीन्स आफ्टर हिटिंग द बॉल, जिस पाथ को फॉलो कर रही है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली with a velocity of 150 meter second की power -1 strike a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second। ओके, एक बुलेट आपकी है, उसका मास क्या है, 10 ग्राम है, वो हॉरिजॉन्टली एक वेलोसिटी जो 150 मीटर पर सेकंड है से स्ट्राइक करती है एक वुडन स्टेशनरी वुडन ब्लॉक को, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो रेस्ट पोजीशन में है, उससे स्ट्राइक करती है, ठीक है। कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकंड। जब वो उससे स्ट्राइक करती है तो 0.03 सेकंड में वो स्टॉप हो जाती है, मींस आपकी जो बुलेट है वो स्टॉप हो जाती है। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. आपको कितना डिस्टेंस, मतलब वो कितना अंदर तक उस वुडन ब्लॉक में जाएगी, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। और वो वुडन ब्लॉक आपका उस बुलेट पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, लेट्स बी स्टार्ट द सॉल्यूशन। Mass of bullet m is 10 gram. You will convert this 10 gram in kilogram. You will find the 0.01 kilogram. Okay. Next is initial velocity of bullet u is 150 meter per second. Okay. Time taken by bullet to become rest t is equal to 0.03 seconds. And ये 0.03 seconds में अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0। इट मीन्स इस फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट करना आपको डिस्टेंस पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू वुडन ब्लॉक s एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन बुलेट f। ठीक है,
तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो गाइज आपको F के लिए मास इनटू एक्सीलरेशन चाहिए। तो यहाँ से देखिए मास तो है बट आपके पास एक्सीलरेशन नहीं है, तो आप एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ से आप यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, दिस इज v इज इक्वल टू u प्लस at, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। v को आप इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू v माइनस यू हो जाएगी, और यहाँ t का मल्टीप्लिकेशन है तो इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फाइंड आउट होगा v की वैल्यू 0, u इज 150, t इज 0.03, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 150 अपॉन में 0.03। एंड ये आप डेसिमल प्लेस को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ आप 20 आप बढ़ाएंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 15000 अपॉन में 3, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 माइनस टाइम्स ऑफ 5000 मीटर सेकेंड की पावर -1। ओके, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द रिटार्डेशन इन द एक्सीलरेशन। ओके, देन a की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। अब आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्या, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू वुडन ब्लॉक। ओके, दिस इज यूजिंग इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 150 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया, और ये s, इसको आप सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर से आप लेफ्ट हैंड साइड में आप ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवीजन में आपका ट्रांसफर होगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। तो टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये माइनस साइन यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये 150 मल्टीप्लाइड बाई 150 अपॉन में 10,000, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये टू जीरोस और ये 20 कैंसिल आउट, तो 225 अपॉन में 100 एंड यू विल फाइंड द वैल्यू 2.25 मीटर। मीन्स ये आपके वुडन ब्लॉक में आपके बुलेट 2.25 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। देन फोर्स F इज इक्वल टू ma, पुट द वैल्यू ऑफ m इज 0.01 kilogram and a is minus times of 5000, you will find the value that is minus 50 Newton. Okay, the magnitude of the force is 50 Newton. Okay, this is your answer. The next question is question number 15. An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter second की power -1 collide with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और ये एक 5 kg के वुडन ब्लॉक से क्या करता है, स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो ये आपका मूविंग था और आफ्टर स्ट्राइकिंग आपकी ये फिगर होगी। ठीक, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। फिर जब ये इसको स्ट्राइक करता है, ऑब्जेक्ट आपका वुडन ब्लॉक से स्ट्राइक किया, तो ये एक सेम स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं। मीन्स आप इनके मोशन की डायरेक्शन कंबाइंड हो गई इधर की तरफ। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ठीक, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। आपको इम्पैक्ट के पहले कितना मोमेंटम था और इम्पैक्ट के बाद कितना मोमेंटम था, ये आपको फाइंड आउट करना है। आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और इस कंबाइंड ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी होगा ये भी आपको फाइंड आउट करना। ओके, देन गिवन दैट मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ये आपका गिवन है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u1 इज 10 मीटर सेकेंड की पावर -1। ओके, मास ऑफ वुडन ब्लॉक m2 इज 5 kg, ये भी आपका गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ब्लॉक, देखिए स्टेशनरी यहाँ वर्ड हमने यूज कर दिया है और आपके क्वेश्चन में भी दिया है। स्टेशनरी मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये रेस्ट पोजीशन में है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ओके, देन टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट मीन्स टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट इज
mass of first body into velocity of initial velocity of first body plus mass of second body into initial velocity of second body. वैल्यू पुट करेंगे, m1 is 1, u1 is 10, m2 is 5 and u2 is 0. You will find the value. This is 10 plus 0. This is 10 kilogram per second. Okay? मीन्स आपकी जस्ट इम्पैक्ट आपकी जो वेलोसिटी होगी वो आपकी होगी 10 किलोग्राम पर सेकेंड. ये आपका मोमेंटम होगा. ये आपका फर्स्ट आंसर होगा. नेक्स्ट आपका सेकेंड, मोमेंटम जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट. इम्पैक्ट करने के बाद मीन्स आफ्टर कोलिजन कितना मोमेंटम होगा, ये आप m2 p2 फाइंड आउट करेंगे. तो गाइस आपको ये कंफर्म है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो ये सेम फार्मूला यहाँ भी यूज करेंगे. टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट. तो बिफोर इम्पैक्ट आपका p1 था और आफ्टर आपने p2 कंसीडर किया. तो p1 की वैल्यू आपके पास है, दिस इज 10 किलोग्राम पर सेकेंड. ये आपकी p2 की वैल्यू होगी और यही मोमेंटम आपका होगा जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट. ओके. देन वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज v. देन mass of combined object m is equal to m1 plus m2. This is equal to 1 plus 5. This is 6 kg. And then momentum, total momentum after impact, that is p2. p2 is equal to mass into velocity. वैल्यू आप p2 आपके पास है 10. वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आप m की भी वैल्यू है तो वहाँ से आप v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. p2 upon m. p2 is 10, m is 6. This is equal to 1.66 and nearly equal to 1.67 मीटर सेकेंड की पावर माइनस 1. मीन्स आपकी कंबाइंड वेलोसिटी जो होगी दोनों ऑब्जेक्ट की वो आपकी होगी 1.67 मीटर सेकेंड की पावर माइनस 1. ओके, दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर सेकेंड की पावर माइनस 1 टू 8 मीटर सेकेंड की पावर माइनस 1 इन 6 सेकेंड. एक आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg है, वो 6 सेकेंड में अपनी वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड में चेंज करता है. कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड द ऑब्जेक्ट. ओके गाइस, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस. मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 100 kg. Initial velocity u is 5 meter second की power minus 1 and final velocity is 8 meter per second. Then time taken by an object to change its velocity, that is 6 second. Okay, initial momentum of object, this is initial momentum p1 is mass of object into initial velocity. You will put the value, m is 100 and u is 5. You will find the 500 kg meter per second. Okay, then final momentum of object, that is p2. This is equal to mass into final velocity. Mass 100 and final velocity is 8. This is equal to 8000 kilogram per second. Okay, then आपको find out करना force. तो guys, you all are know change in rate of change of momentum is directly proportional to force. Then applied F is equal to change in momentum upon my time. Change in momentum means p2 minus p1 upon my time. Put the value 8000 minus 5000 upon my 6. This is 300 upon my 6, and then F is equal to 5 Newton. Then means your force is 5 Newton. Okay. Next question is question number 17. Akhtar, Kiran and Rahul were riding in a motor car that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situations. मीन्स गाइज ये क्या है कि एक अख्तर, किरण और राहुल ये फ्रेंड हैं और ये मोटर कार में राइडिंग पे थे. तो एक्सप्रेसवे पे एक इंसेक्ट आके, एक कोई कीड़ा था वो आके इनकी गाड़ी से हिट किया और गाड़ी से हिट किया तो वो मर गया. ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने अपना स्टेटमेंट देना शुरू किया कि ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ. तो वो अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया. तो किरण का स्टेटमेंट था, इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार. इंसेक्ट इसलिए
मर गया, क्योंकि उसने अपने मोमेंटम को इन कंपैरिजन टू कार से उसके जो चेंज ऑफ मोमेंटम थे वो मैक्सिमम थे, ग्रेटर थे, बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन द वेलोसिटी ऑफ मोटर कार। जो वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट का था उस पर चेंजिंग जो थी वो कार की वेलोसिटी के चेंजिंग की कंपैरिजन में मैक्सिमम थी। ओके, फिर अख्तर ने अपना स्टेटमेंट दिया कि मोटर कार वाज मूविंग विद ए लार्ज वेलोसिटी, इट एक्सर्टेड ए लार्ज फोर्स ऑन द इंसेक्ट, ओके, एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड। क्योंकि कार की जो वेलोसिटी थी वो इन कंपैरिजन टू इंसेक्ट वो ज़्यादा थी, इसलिए इंसेक्ट कार ने उस पर फोर्स जो अप्लाई किया वो ज़्यादा था और इसकी वजह से आपका जो कीड़ा था वो क्या गया, मर गया। बट राहुल वाइल पुटिंग इंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सेड दैट both the motor car and the insect experience the same force and a change in their momentum। दोनों ने सेम फोर्स को एक्सर्ट किया और सेम मोमेंटम को भी एक्सर्ट किया। ठीक है, कमेंट ऑन दीज सजेशंस। अब आपको इस पे कमेंट करना है कि किसका स्टेटमेंट सही है, किसका रॉन्ग है, और सही है तो उसका क्या जस्टिफिकेशन होगा। ठीक है, देन वी स्टार्ट। फर्स्ट, किरण द इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मोटर कार इज रॉन्ग। ये आपका गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन बोथ आर इक्वल। ओके, देन नेक्स्ट इज अख्तर सजेशन मोटर कार वाज मूविंग विद ए लार्ज वेलोसिटी, इट एक्सर्टेड ए लार्ज फोर्स ऑन द इंसेक्ट एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड। रॉन्ग। गाइज आपको ये पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं, टू ऑब्जेक्ट हैं, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पे जितना फोर्स लगेगा सेकंड भी फर्स्ट को उतने ही फोर्स से पुल करेगा। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, इसमें ग्रेटर और लेस फोर्स की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और थर्ड वन इज राहुल्स सजेशंस बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, ये राइट है, एंड ए चेंज इन देयर मोमेंटम इज करेक्ट। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, मींस उनका जो फोर्स था वो फोर्स सेम होगा और चेंज इन मोमेंटम भी जो होगा वो सेम होगा, बट डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो एक्सप्लेनेशन जो आपका है दैट इज at time of collision motor car and insect both experience the same force as action and reaction are always equal in magnitude and opposite in direction। गाइस ये आपको कंफर्म है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपका जो होता है वो मैग्नीट्यूड उसका सेम होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, बट डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है। एंड मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड का जो होगा वो भी सेम होगा, बट इसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। गाइस आपको ये भी कंफर्म है कि चेंज इन मोमेंटम डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी तो उसका मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। इसकी वजह से राहुल का स्टेटमेंट जो था वो सही था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 cm? Take its downward acceleration to be 10 meter per second की पावर -2। ओके, तो ये देखते हैं गिवन आपका क्या है, एक डंबल है उसका मास है 10 kg। ठीक है, ये एक फ्लोर से ऊपर से आपका ये नीचे की तरफ गिराया जाता है और वो फ्लोर आपका है कितने सेंटीमीटर की हाइट का है, 80 सेंटीमीटर का है। इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में तो ये आपका हो जाएगा 0.8 मीटर। और ये जो हाइट आपका होगा ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द डंबल होगा, मींस वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इसकी हाइट होगी फ्लोर की। ठीक है, तो उसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया है। एक्सेलरेशन ऑफ डंबल इज 10 मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, देन मोमेंटम ऑफ डंबल आपको P फाइंड आउट करना है। तो P फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए मास और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, थर्ड इक्वेशन से v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। गाइस जब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे क्या, इनिशियल वेलोसिटी की। जब वहाँ रेस्ट वो ऊपर से फ्लोर से नीचे की तरफ स्टार्ट करेगा तो उसकी उस टाइम वेलोसिटी 0 होगी, वो स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी 0 × 2 × as, a की वैल्यू 10, s की वैल्यू 0.8 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 16
मीन्स v स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा 16 के, तो v की वैल्यू √16 दिस इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब आप आसानी से मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू v, पुट द वैल्यू ऑफ m इज 10 kg and v is 4, this multiplied you will find the momentum p is equal to 40 kilogram meter per second. This is your answer. Okay guys, thank you for this sessions and you will complete your notes. Next class we will start a new chapter, that is gravitation. Okay, thank you guys, have a nice day and good day.